Hallo learners, this is the 34th video of week 7. Hallo, schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut? Was machen Sie heute? Ich habe auch eine andere Frage. Wo arbeiten Sie? Was machen Sie beruflich? What are you by profession? Was sind Sie von Beruf? Und wo arbeiten Sie? Zum Beispiel, for example, ich bin Professorin von Beruf und ich arbeite an der Uni. Ich arbeite an der Banaras Hindu Universität. Und wo arbeiten Sie? आप लोग कहाँ काम करते हो? Let us have a dialogue on this. Hallo Jyoti, Hallo Charu, wie geht es dir? mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht es auch wunderbar, danke schön. Okay. Charu, Ja? studierst du noch oder Nein. arbeitest du? Ich arbeite. Ach so, und wo arbeitest du? Also ich bin Lehrerin von Beruf und ich arbeite in der Schule. Du arbeitest in der Schule. Ja. Aha, Und du, Jyoti, wo arbeitest du? ich arbeite an der Universität. Ah, du bist Professorin von Beruf. Genau, ich bin Professorin von Beruf. Okay. Und Jyoti, wo arbeitet der Arzt? Der Arzt, er arbeitet in dem Krankenhaus. Okay, in dem Krankenhaus. Genau. Und wo arbeitet der Bauer? Der Bauer arbeitet auf dem Feld, on the field. Auf dem Feld. Okay. Und wo arbeitet der Bäcker? Der Bäcker, er arbeitet in der Bäckerei, In der Bäckerei. in the bakery shop. Okay. Und wo arbeitet der Taxifahrer? Der Taxifahrer, Ja. er fährt ein Taxi und er arbeitet im Taxi. Im Taxi arbeitet er. Ja, Okay. Und wo arbeitet der Briefträger? ach so, der Briefträger, Ja. the postman, Ja, genau. er arbeitet bei der Post, at the post office or with the post office. Bei der Post. Bei der Post, genau. Und wo arbeitet der Koch? Ach so, der Koch, Ja. er arbeitet in dem Restaurant. In dem Restaurant. Ja, Und auch im Café? ja, auch im Café, in the cafeteria also. Ah, okay. Und wo arbeitet die Friseurin? Aha, die Friseurin arbeitet im Friseursalon. Im Friseursalon. Ja, eben. Okay. Und wo arbeitet der Tischler? Der Tischler, Ja. you mean the carpenter, Ja, genau. er arbeitet in der Möbelfabrik. In der Möbelfabrik? Ja, the furniture factory. Ah, Möbelfabrik. Genau. Und wo arbeitet der Kellner? Der Kellner, er arbeitet im Restaurant in der Küche. Ah, in der Küche, im Restaurant. Im Restaurant und nicht zu Hause. Okay, vielen Dank. Ja. Und wo arbeitet der Bauarbeiter? The construction worker, Ja. er arbeitet an der Baustelle.
An der Baustelle. Okay. At the construction site. Vielen Dank, Jyoti, für die Informationen. Bitte schön, Charu. Okay. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis nachher. So, yesterday we did a few prepositions. कौन सी थी? In, auf, an. और ये कैसे यूज़ हो रही थी? हमने एक और चीज़ सीखी थी, दाटिव. डेयर का बन जा रहा था डेम, डी का बन जा रहा था डेयर, और दास हो जा रहा था चेंज कैसे? डेम में. और प्लूरल डी का हो रहा था डेन प्लस एन. Let us have a look at these prepositions again. These were the prepositions which we did today. और हमने क्वेश्चन कौन सा किया था? वो मतलब where. और जो पिक्चर्स थी रूम में, वहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें पड़ी थी. जैसे कॉफ़ी टेबल पर रखी थी, बुक्स ऑलरेडी बुक शेल्फ में रखी थी, लैम्प जो है रूम में ऑलरेडी हैंग हो रहा था, ब्लूमन टॉप पौधा जो है ऑलरेडी विंडो पर पड़ा था. सो द थिंग्स वर ऑलरेडी देयर. उस केस में हमारा सवाल था वो कहाँ पर रखी हैं. सो इन prepositions के साथ अगर हमारा सवाल है वो यानी कहाँ पर रखी हुई हैं, तो आप प्रेपोजिशन के बाद यूज़ करते हो डाटिव, जैसे हमने कल देखा. और इन केस हम अभी रख रहे हैं, जैसे मैंने कॉफ़ी का कप उठाया और मैं टेबल पर रख रही हूँ, या फिर मैंने घड़ी उठाई और मैं दीवार पर टांग रही हूँ, या फिर मैंने ये पेपर उठाया और मैं किताबों के बीच में रख रही हूँ. कोई भी चीज़ अगर मैं कहीं से उठाकर रख रही हूँ, इसका मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, वो चीज़ यहाँ से उठकर कहीं और रखी जा रही है. उस केस में हमारा सवाल होता है वो हिन, कहाँ पर, यानी कहाँ पर रखा जा रहा है, वो हिन. और उस केस में हो जाता है हमारा अकुजाटिव. मतलब जो प्रेपोजिशंस हैं ये सारी, इन, आउफ, अन, उंटर, यूबर, ये सारी की सारी, अगर तो ऑलरेडी चीज़ें वहाँ पड़ी हैं तो हम लगाएंगे प्रेपोजिशन के बाद डाटिव, और अगर हम रख रहे हैं तो हम प्रेपोजिशन के बाद लगाएंगे अकुजाटिव. एक बारी वर्ब्स देखते हैं. कुछ वर्ब से भी हिंट मिल जाता है कि रखा हुआ है ऑलरेडी या फिर हम रख रहे हैं. जैसे कि अगर तो सवाल है वो हिन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर, तो कौन कौन सी वर्ब्स हो सकती हैं? एक तो हो सकता है हैंगन, मैं पिक्चर टांग रही हूँ, आई एम हैंगिंग द पिक्चर ऑन द वॉल. तो ये ऑन द वॉल जो है, ऑन है अन, वॉल का आर्टिकल है डी वांड. So die Wand in Akkusativ will be die Wand. Ich hänge das Bild an die Wand because I am hanging. Stellen, stellen का मतलब रखना, कोई चीज़ खड़े कर कर रखना. जैसे कॉफ़ी का कप है, आप उसको खड़े कर कर रखते हो, या फिर पानी की बॉटल है, आप उसको खड़े कर कर रखते हो, या फिर आपका कंप्यूटर है, वो भी ऐसे पड़ा होता है टेबल पर. दैट इज़ स्टेलन, टू पुट, कोई चीज़ खड़े कर कर रखनी, स्टेलन. और स्टेलन अपने आप में है एक अकुजाटिव, उसमें ऑलरेडी एक हिंट आ रहा है. स्टेलन, इश स्टेलर, मैं रख रही हूँ, तो सवाल आया वो हिन, कहाँ पर रख रहे हो. ऐसे ही लेगन, लेगन मीन्स ऑल्सो टू पुट, रखना, लेकिन कोई चीज़ लेटा कर रख रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं लेगन. जैसे कि ये पेपर रखा है, अब इस पेपर को अगर हम टेबल पर रखेंगे तो हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे. सो उस केस में लेगन. मोबाइल फ़ोन होता है हमारा, उसको जैसे हम टेबल पर रखते हैं
उस केस में यूज़ करेंगे लेगन. सो लेगन इज़ ऑल्सो टू पुट, लेकिन ऐसे रखना. देन गेन फारन, यहाँ पर देखिए एक जगह से अगर दूसरी जगह पर जा रहे हैं और हमारे पास ये वेक्सल प्रेपोजिशन कोई है, जैसे आई एम गोइंग इन द स्कूल, डी शूल होता है. इश गेयर इन, इन आ गई हमारे पास प्रपोजिशन, डी शूल है, गेयन इज द वर्ब, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो अक्यूजाटिव लगेगा. इश गेयर इन दी शूलर, आई एम गोइंग इन द स्कूल. और वो कब लगेगा? हैंगन यहाँ पर सेम है, मैं पिक्चर टांग रही हूँ, वो हिन, पिक्चर ऑलरेडी टंगी है, वो. स्टेलन की जगह पर स्टेन हो जाता है, इट्स ऑलरेडी केप्ट देयर, इट इज़ स्टैंडिंग देयर. जैसे कॉफ़ी का मग ऑलरेडी पड़ा है वहाँ पर, वाटर बॉटल पड़ी है, तो हमको ऑलरेडी हिंट हो जाएगा कि यहाँ पर अब डाटिव लगेगा प्रेपोजिशन के बाद. लीगन मतलब भी पड़ा हुआ होना, हम नहीं रख रहे, वो ऑलरेडी वहाँ पर है. लीगन, माइन हैंडी लीक्ड auf dem Tisch. My mobile phone is lying on the table. Der Tisch will change to dem Tisch because सवाल है वो. और sein मतलब is already there. जैसे das Handy ist auf dem Tisch. The mobile phone is on the table. या तो हम कह सकते हैं लीक्ड आउफ देम टिश इज़ लाइंग ऑन द टेबल, या फिर इट इज़ ऑन द टेबल, दस इस्ट आउफ देम टिश. हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे मैंने बोला हैंगन, हैंगन के दो एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने यहाँ पर. पहला सेंटेंस है अक्यूजाटिव, दूसरा सेंटेंस है डाटिव. थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. इश हैंगर die Uhr an die Wand. Ich hänge, मैं टांग रही हूँ. क्या टांग रही हूँ? That is accusative, the object. Die Uhr remains die Uhr. उसके बाद आ गई हमारी preposition an. जैसे ही preposition आ जाती है और फिर आता है एक noun, उसके बीच में लगेगा एक article. और वो कौन सा article होगा? क्या अक्यूजाटिव लगेगा या डाटिव लगेगा, वो प्रेपोजिशन डिसाइड करती है. तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं इन, अन, यूबर, उंटर, हिंटर, फोर, ये सारी ये हैं चेंजिंग प्रेपोजिशंस. अगर तो कुछ हम कर रहे हैं तो अक्यूजाटिव, अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर है तो डाटिव. सो इश हैंगर दी उअर अन दी वांड. वांड इज़ वॉल, घड़ी को दीवार पर ऐसे टांगा जाता है. सो द प्रेपोजिशन इज अन. डी वांड रिमेन्स डी वांड, डी इन accusative रिमेन्स डी. डी उअर हैंग्ड अन देयर वांड. अब हमने टांग दी है ऑलरेडी और वो अब टंगी है. सो डी उअर हैंग्ड, द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल. अन, लेकिन डी वांड की जगह पे हो जाएगा डेयर वांड, बिकॉज द क्वेश्चन इज वो. डी चेंजेस टू डेयर इन डाटिव. नेक्स्ट वर्ब स्टेलन और स्टेन. इश स्टेलर दी फ्लाशर आउफ den Tisch. I put the bottle on the table. मैं बॉटल को टेबल पर रख रही हूँ. Die Flasche steht auf dem Tisch. अब मैंने रख दी, अब वो बॉटल ऑलरेडी पड़ी है यहाँ पर. So die Flasche steht auf dem Tisch. बॉटल टेबल पर पड़ी है. Ich lege das Handy auf das Sofa. I'm putting the mobile on the sofa. It's like action, मैं रख रही हूँ.
So das Sofa will remain das Sofa after the preposition. Das Handy liegt auf dem Sofa. थोड़ी सी स्पेलिंग का फ़र्क है, अकुजाटिव में लेगन और डाटिव में लीगन, ध्यान रखना है इसका. सो das Handy liegt auf dem Sofa. das Sofa का हो गया dem Sofa. Die Kinder gehen in die Schule. The children go in the school. Die Schule remains die Schule when they are going from one place to another. Die Kinder sind in der Schule. The children are in the school. वो already वहाँ पर हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा. या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोई भी और वर्ब. Die Kinder lernen in der Schule. हमारा सवाल वही रहेगा, वो lernen die Kinder, वो studieren die Kinder, वो sind die Kinder. सभी केस में देन इन der Schule. जैसे कि अभी हमने प्रोफेशंस के साथ किया, वो arbeitet der Kellner. द क्वेश्चन वॉज वो मतलब कहाँ पर काम करता है, और फिर जो भी प्रपोजिशन लगानी है इन, आउफ, अन, नाउन का आर्टिकल देखना है और आर्टिकल को डाटिव कर देना है. जैसे दास रेस्टोरेंट है, दास इन डाटिव चेंजेस टू डेम. सो इन डेम रेस्टोरेंट. इन डेम को हम क्लब भी कर देते हैं, उसको हम बोल सकते हैं इम. इन डेम को अगर दो वर्ड्स बोलने का मन नहीं है, वी कैन ऑलवेज से इम. ऐसे ही इन दास अगर कुछ है, उसको भी हम क्लब करके बोल सकते हैं इन्स, INS, इन दास या फिर इन्स. शैल वी ट्राई अ फ्यू सेंटेंसेस. एक एक्सरसाइज करते हैं साथ में. आपको देखना है वोहिन या फिर वो, कौन सा सवाल है, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है. Nummer 1, ich bin, I am, that means I am already there. So वो हुआ या वोहिन हुआ. The question is वो. किनो का आर्टिकल दास, प्रपोजिशन लगेगी इन पूरे में, तो फिर दास के साथ कैसे डाटिव बनेगा, इन प्लस डेम. Ich bin in dem Kino. I am in the movie hall. या फिर im Kino. Ich bin im Kino. Let me write it down for you. Ich gehe heute Abend. सेंटेंस देखना है. Gehen means you are going from one place to another. That means preposition के बाद आएगा accusative. पहले preposition लगा देते हैं in. Disco का आर्टिकल है D. So die Disco remains die Disco. Ich gehe heute Abend in die Disco. Wo lernst du Deutsch? सवाल है वो, तुम कहाँ जर्मन सीख रहे हो. In der Schule, in the school, oder an dem Institut, or at the institute. At कहीं बोलना है, then we use an. Das Institut होता है, das changes to dem. Ich möchte, यहाँ पर वर्ब है हमारी gehen. gehen मतलब wohin. Das Theater होता है, I want to go in the theater. Do you have time? So ich möchte in das Theater gehen. या फिर ich möchte ins Theater gehen. INS. 5. Wohin gehst du heute? तुम आज कहाँ जा रहे हो? Ich gehe mit meiner Mutter auf den Markt. Der Markt होता है हमारा, so auf den Markt. See, Markt is market.
इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड स्पेस। जो चीज़ बंद है वहाँ पर तो हम बोल रहे हैं इन, जैसे स्कूल इट्स अ बिल्डिंग, सो हम कह रहे हैं ich gehe in die Schule। लेकिन मार्केट प्लेस इट्स एन ओपन प्लेस, तो हम इसीलिए बोलते हैं auf den Markt। आई एम गोइंग टू द मार्केट प्लेस, auf den Markt। 6 Konrad Gate, Konrad is a name, Bibliothek is die Bibliothek, again it's a building, so you can use in। Konrad geht in die Bibliothek, okay, yeah। 7 meine Familie wohnt, my family is living, das Zentrum, the center मतलब सिटी सेंटर। सवाल क्या है, वो कि wohin? सवाल है वो कहाँ पर रह रहे हैं, सो in dem Zentrum या फिर im Zentrum। 8 das Orchester spielt Konzertsaal, Concert Hall, again it is im Konzertsaal, it is der Saal। 9 okay, gute Idee, wir können dash Restaurant essen, हम लोग रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, we can eat in the restaurant। तो यहाँ पर सवाल है वो कहीं जा नहीं रहे, वहाँ पर खा रहे हैं, सवाल हुआ वो in dem Restaurant। वो arbeitet Claudia, क्लाउडिया कहाँ काम करती है, काफ़े आर्टिकल das, आइस काफ़े मतलब आइसक्रीम पार्लर, सो im आइस काफ़े, इन द आइसक्रीम पार्लर, IM। wohin geht Oma, ओमा कहाँ जा रही हैं, ग्रैंड माँ कहाँ पर जा रही हैं, wohin है सवाल, अकुजाटिव, in die Kirche, die Kirche remains die Kirche। wohin fahrt ihr am Wochenende, तुम लोग वीकेंड पर कहाँ जा रहे हो, in the mountains, in die Berge, in die Berge, in the mountains। Die Berge is plural, so in die Berge। Er schläft, Schlafzimmer है, das Schlafzimmer, he is sleeping in the bedroom, er schläft im Arbeitszimmer, im Arbeitszimmer, er schläft im Schlafzimmer, he is sleeping in the bedroom। 14 ich bin Büro, Büro होता है ऑफिस, das Büro, I am in the office, heute habe ich viel Arbeit, today I have lot of work, so ich bin im Büro, I am in the office। Sie gehen zusammen and Krankenhaus is das Krankenhaus, gehen है इसका मतलब हमको पता है wohin, so in das Krankenhaus या फिर ins Krankenhaus। यहाँ राइट साइड में टेबल दी है, प्लीज़ लुक एट इट। wohin है और मास्कुलिन है तो इन प्लस डेन, नॉइथ्रुम है तो इन प्लस das या फिर इन्स, फेमिनिन है तो इन प्लस डी, और अगर सवाल है वो यानी कि डाटिव तो इन प्लस डेम हो जाएगा इम, ऐसे ही नॉइथ्रुम में भी इन प्लस डेम हो जाएगा इम, और फेमिनिन में डी चेंजेस टू डेयर सो इट बिकम्स इन डेयर। सो I hope the exercise was not very difficult for you, but if you are still having trouble in understanding wohin, उसका सबसे अच्छा solution क्या है, आप लोग अपने घर पर जाइए और हर एक रूम में चीज़ें उठाकर पहले तो रखिए कि मैं इसको यहाँ उठाकर रख रहा हूँ,
मैं बॉटल को बुक शेल्फ में रख रहा हूँ, मैं पेन को बुक्स के अंदर रख रहा हूँ। 5 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको जब आप रख रहे हैं, और 5 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको जब वो ऑलरेडी वहाँ पर रखा है। सो ट्राई मेकिंग दीज सेंटेंसेस 5 वो हिन के साथ और 5 वो के साथ। दिस इज़ रियली सिंपल, it just needs practice. So bitte üben Sie zu Hause. Happy learning. Danke schön. Auf Wiedersehen.